Dear student, today we are going to preparation of alkanes. Continuing, दो मेथड कंप्लीट हो चुका था इन लास्ट लेक्चर. ये तीसरा वाला मेथड वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स. Yes, COOH group having compound is called carboxylic acid. कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या रहता है? COOH कार्बोक्सिल ग्रुप रहता है. Now, in the carboxylic acid method, there are two. One of them sodium salt. Whenever carboxylic acid, this one is acid, it react with base like sodium hydroxide. So obviously from here H plus, from here OH minus, remove as a water, and sodium combines here. This is carboxylate ion where sodium is combined, so that is a sodium salt, sodium carboxylate. Suppose we are taking acetic acid. IUPAC name ethanoic acid is taken. It react with the base. So here will be sodium ethanoate, sodium ethanoate is our salt. Here is H plus, here is OH minus, so H2O will be removed and it gives sodium ethanoate. This is sodium salt of carboxylic acid. On heating with soda lime, yes, we are, delta means heating. We are giving heat. Heating. Delta indicates heating. With the soda lime, underline it. What is soda lime? Soda lime is actually mixture of the sodium hydroxide and calcium oxide. Yes, easily we can find in our chemistry lab. जो अपना केमिस्ट्री का लैब होता है इसमें इजीली वी कैन फाइंड, यहाँ पे रहता है सोडियम इथेनोइट. यस, दिस इज सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. It react with soda lime, means mixture of sodium hydroxide and calcium oxide. On heating, what happens here? 2 sodium, 1 carbon and 3 oxygen. You can see 2 sodium, okay, 1 carbon, okay, and 3, 1, 2 and 3 oxygen. Removes as a Na2CO3. So यहाँ से रिमेनिंग CH3 वाला रह गया पार्ट, यहाँ से रिमेनिंग हाइड्रोजन रह गया. सो CH3 combines with hydrogen and gives CH4. This is our alkane, and you can see here एक कार्बन लेस रहता है. In this process is alkanes, okay, containing 1 carbon less. जो अपना सॉल्ट था इसमें 2 कार्बन थे, एक कार्बन रिमूव हो गया. दिस प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मीन्स टोटल रिमूव. समथिंग इज रिमूवल, समथिंग इज रिमूविंग फ्रॉम द कंपाउंड विच इज कॉल्ड एलिमिनेशन. यहाँ पे क्या एलिमिनेशन हो रहा है? एक अपना कार्बन एज ए CO2, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा है.
Yes, in this compound Na2CO3, yes, actually Na2O plus CO2, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट. सो CO2 यहाँ से एक्चुअली रिमूव हो रहा है विथ सोडियम, 2 सोडियम and 1 oxygen as Na2CO3. So this reaction is called soda lime test, or this reaction is called soda lime test or decarboxylation reaction also. Write a short note about decarboxylation reaction. So yes, this one comes. Carboxylation means C-double group when we add, so carboxylation. केमिस्ट्री में D का मीनिंग होता है रिमूवल. We are adding C-double group, so carboxylation. We are removing C-double group, so decarboxylation रहता है. Now store in your mind and keep in your brain in mind D whenever comes in chemistry, it means removal nature. ये removal nature रहता है. Okay. Now second example, suppose benzoic acid is given. What happens there? Yes, sir. In this case, benzene ring contains C-double. So ये वाला benzoic acid है. Then it react with soda lime, sodium hydroxide and calcium oxide. First of all, this one is acid. So acid बेस के साथ रिएक्ट करेगा. यहाँ से H प्लस, यहाँ से OH, वाटर रिमूव हो जाएगा. कैल्शियम ऑक्साइड behaves like a catalyst. यहाँ पे सोडियम कंबाइन होगा. So this is sodium benzoic acid, sodium benzoate. Then after once again it react further reaction with soda lime again. If salt is given, then reaction occurs in one step. If carboxylic acid is given, then it react with the base. It convert into sodium salt. Now again reaction, 2 sodium, 1 carbon and 3 oxygen removes as a sodium carbonate. ये as a catalyst रहेगा. Hydrogen combines here. Actually this one C6H5 C-double-O-N है. So C6H5 combines with hydrogen and gives benzene, C6H6. Okay. Now this is benzene. If cyclobutane carboxylic acid is given, yes, this one cyclobutane carboxylic acid, it react with soda lime. So पहले क्या होगा, ये एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा. एसिड में से H प्लस आएगा, बेस में से OH माइनस आएगा. वो दोनों कंबाइन होके H2O निकल रहा है यहाँ से. H2S रिमूवल. Why? Acid react with base gives salt and water. So byproduct generally we are taking below the arrow as a minus. This is byproduct. So यहाँ पे सोडियम, ये वाला सॉल्ट बन जाएगा. साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलेट, सोडियम cyclobutane carboxylate. Once again react with
soda lime. So you can see what happens here. Na2CO3 will be removed and यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा. सो ये वाला अपना CH2 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 cyclobutane. Alright, this one is cyclobutane. यहाँ पे CH2 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 और CH था, एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा and gives alkane. Here question is asked in our book problem number 13.6 of chapter 13 NCERT book. Sodium salt of which acid will be needed for the preparation of propane. यहाँ पे प्रोडक्ट दिया हुआ है, उसका रिएक्टेंट कौन सा होगा वही आस्क्ड है. राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन. यहाँ पे आंसर इज गिवन. We have to form propane. So which carboxylic acid salt is needed? So obviously our product is propane. So by decarboxylation method, means using soda lime test, 1 carbon more should be there in our carboxylic acid. So there should be butanoic acid and it react with NaOH. So it will be sodium butanoate. Yes, this is our answer. यहाँ पे प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन 3 आ रहा है. सो अभी देखा डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में 1 कार्बन लेस रहता है. सो प्रोडक्ट प्रोपेन है तो कार्बन 3 है. सो जो मेन कंपाउंड रहता है उसमें 1 कार्बन ज्यादा वाला कार्बोक्सिलिक एसिड होगा. सो इट विल बी butanoic acid and salt of it is sodium. Yes. Positive and stood first in writing of the name. Sodium butanoate will be our compound. Sodium butanoate react with soda lime at high temperature. So 2 times sodium, 1 carbon and 3 oxygen removes as a Na2CO3. Yes, sometimes आंसर दिया होता है, हमको उसका मेन रिएक्टेंट कौन सा वाला है वो फाइंड करना होता है. Now from carboxylic acids we can form alkane. कार्बोक्सिलिक एसिड में से अल्केन बना सकते हैं. इसमें फर्स्ट वाला मेथड देखा. नाउ सेकेंड इज कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड. फर्स्ट वाला था सोडा लाइम टेस्ट. रिएक्शन विद सोडा लाइम मींस मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड. ये वाला डेवलप किया कॉल्बे ने. सो इन ऑनर ऑफ इट विच इज कॉल्ड द मेथड Kolbe's electrolytic method. Yes, we have to pass electric current. That is called electrolytic method. When we take sodium salt of carboxylic acid, so it gives positive and negative ion into water. Ionization हो रहा है. Then we are passing electric current throughout the solution. ये पॉजिटिव चार्ज एनोड रहता है, ये नेगेटिव चार्ज वाला रोड कैथोड रहेगा. यस, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. यस, सोडियम एसीटेट इज अ सोडियम सॉल्ट.
समटाइम्स पोटेशियम सॉल्ट रहता है. So this one potassium acetate, this one sodium acetate. Aqueous solution on electrolysis means passing electric current through it gives alkane containing even number. Even number वाला means 2, 4, 6, 8, not 8 odd, but even number वाला alkane एनोड पे मिलेगा. Yes, in full detail we will discuss later. First of all, 2 mole of sodium acetate is taken and 2 mole water. So on the anode it gives ethane. Ethane में number of carbon 2 आ रहा है. It means even number है 2, 4, 6, 8 ऐसे alkane मिलेगा. 2 mole of carbon dioxide, hydrogen gas librates and also sodium hydroxide. It gives as a product. So this process we can divide in the 3 part. So mechanism. This is called, this method is developed by Kolbe. So which is called Kolbe electrolysis method. First step में क्या रहेगा, जो अपना सोडियम सॉल्ट होता है वो आयोनाइज्ड होगा. यस, इनटू वाटर इट गिव्स एसीटेट एंड Na+. यहाँ पे जो बॉन्ड था बिटवीन ऑक्सीजन एंड सोडियम वो आयोनिक रहता है. सो दोनों इलेक्ट्रॉन गेन किया ऑक्सीजन में. So one electron is gained from the sodium and one electron is lost by sodium. So sodium positive charge आ रहा है और एसीटेट अपना इलेक्ट्रॉन गेन होने के बाद नेगेटिव चार्ज आ रहा है. एक तो अपना था और एक गेन किया हुआ है. कहाँ से? सोडियम के पास से लिया. सो नेगेटिव उसने गुम, इसने गेन किया, इसने लूज किया. सो ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव हो गया. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट स्टेप में व्हेन वी टेक सोडियम एसीटेट इनटू वाटर, सो सेपरेशन के हिसाब से ये एसीटेट आयन आ रहा है. ओके, इन द सेकेंड स्टेप एनोड पे होगा. ये वाला एसीटेट आयन इज मूव्ड टुवर्ड एनोड. So CH3 structure is like this. 2 mole acetate ion is moving toward anode. वहाँ पे क्या होगा? First of all CH3COO, जो एक गेन किया हुआ इलेक्ट्रॉन वो लूज कर देगा और वो न्यूट्रल हो जाएगा. इसका जो 5 इलेक्ट्रॉन 6 है, 1, 2, 3, 4, 5, जो गेन किया हुआ रहता है ना वो रिलीज कर देगा. दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन. एसीटेट यहाँ पे जाएगा, गेन किया हुआ इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. सो ऑक्सीडेशन हो रहा है. सो एसीटेट फ्री रेडिकल होगा. यस, हियर एसीटेट फ्री रेडिकल हो जाएगा. Then after this one is acetate ion. This one is acetate free radical. ये वाला फ्री रेडिकल है. इसमें भी यहां से होमोलाइटिक फिशन होगा. सॉरी, फ्रॉम यहां से, फ्रॉम हियर 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन यहां से ब्रेक होगा. दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे. सो 2 methyl free radical and 2 times CO2.
ये वाला इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होकर पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये 2 बार होगा तो here and these two methyl combines with each other and gives ethane. You can see. So on anode we get on the anode we get फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम एसिटेट वाटर में डाल दिया, उसके बाद क्या होगा, आयोनाइजेशन होगा। सो एसिटेट आयन और सोडियम, एसिटेट का आयन के पास नेगेटिव चार्ज रहता है, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम की ओर से गेन किया हुआ रहता है, वो गेन किया हुआ इलेक्ट्रॉन एट ए टाइम एनोड पे जाके रिलीज कर देगा और वो फ्री रेडिकल हो जाएगा विदाउट वन एसिटेट वन इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, सो टू एसिटेट टू, then it became free radical, but free radical is not stable, where one time more यहाँ पे क्या होगा, ये हेमोलाइटिक फिशन होगा, मीन्स पार्टिसिपेटेड जो इलेक्ट्रॉन होता है दोनों एक एक ले लेंगे, ये वाला एक ये वाला है, सो ये फ्री रेडिकल हो जाएगा मिथाइल, बट फ्री रेडिकल आर अनस्टेबल, सो टू मिथाइल एक दूसरे के साथ कंबाइन होके इवन नंबर वाला अल्केन फॉर्म हो गया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सो ऑन एनोड वी गेट ethane and carbon dioxide. Okay, this reaction occurs at the anode. और कैथोड पे क्या होगा, yes we are going to discuss that Na plus आयन और वाटर दोनों कैथोड की ओर जा रहा है, बट रिडक्शन पोटेंशियल टेंडेंसी ऑफ रिडक्शन इज मोर ऑफ वाटर देन सोडियम। जो इलेक्ट्रॉन का गेनिंग नेचर है, Na प्लस भी गेन कर सकता है और वाटर, सो गेनिंग नेचर मीन्स टेंडेंसी ऑफ गेनिंग, इलेक्ट्रॉन गेन करने का जो टेंडेंसी रहता है वो वाटर में ज्यादा है Na प्लस आयन के हिसाब से, सो रिडक्शन इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे क्या हुआ था, एसिटेट भी था और वाटर था, सो लूजिंग नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एसिटेट का ज्यादा था वाटर के हिसाब से, सो विच वन एक्सपीरियंसेस क्लियर ऑक्सीडेशन, एसिटेट पार्ट था उसने ऑक्सीडेशन कर दिया, वाटर नहीं कर सकता ये, ऐसे ही यहाँ सोडियम के साथ वाटर आ रहा है, सो वाटर तो दोनों जगह पे पॉसिबल अवेलेबल है, बट यहाँ कंपेयर करें तो एसिटेट वाला है उसका लूजिंग नेचर वाटर के वजह से वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा रहता है, यहाँ पे सोडियम और वाटर दोनों है तो गेनिंग नेचर सोडियम का लेस है, वाटर का ज्यादा है, सो इन द थर्ड स्टेप ऑन कैथोड वहाँ पे रिडक्शन होगा, yes, so 2 mole of water 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वाटर में क्या होगा 2H plus and 2OH, 1 molecule of water gives 1H plus and 1 OH minus, so 2 molecule 2H plus 2OH minus, ये 2H plus आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और अपना हाइड्रोजन एटम फॉर्म होगा, वो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करके H2 मॉलिक्यूल्स बनाएगा, सो ऑन कैथोड वी गेट्स हाइड्रोजन गैस, सो कैथोड पे क्या रहेगा, हाइड्रोजन गैस रहेगा एज ए प्रोडक्ट, और इसके साथ अपना हाइड्रोक्साइड भी प्रोड्यूस हो रहा है, सो ये वाला नेगेटिव चार्ज यूज हो गया और यहाँ से OH माइनस आ रहा है, सो जो पहले सोडियम एसिटेट था अब सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, सो कैथोड पे हाइड्रोजन मिलेगा और इन द सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड रहता है, दिस मेथड इज कॉल्ड कोल्बेस इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, इस मेथड को हम कोल्बे का इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड बोल सकते हैं, दिस इज कोल्बेस
electrolytic method. Called as electrolysis method. Now understood, when we take sodium acetate with 2 mole of water and electrolysis means when we are passing electric current throughout the solution. So on anode we get ethane and carbon dioxide. On anode, on कैथोड पे क्या मिल रहा है? हाइड्रोजन गैस मिल रहा है ऑन दी कैथोड और सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। पहले अपने को क्या करना रहता है? एक वेसल लेना है, then after in the water we have to add the sodium acetate. So यहाँ पे क्या होगा? सेपरेशन हो जाएगा, मीन्स आयोनाइजेशन होगा दिस कंपाउंड का, it gives sodium and acetate. Then we have to dip 2 electrodes. हम इलेक्ट्रोड को डिप करना रहता है, जो पॉजिटिव चार्ज बैटरी के साथ अटैच रहता है वो वाला एनोड रहेगा, जो नेगेटिव चार्ज अटैच रहता है वो वाला कैथोड रहेगा. सो नेगेटिव आयन मूव्स टुवर्ड एनोड. यस, वाटर तो दोनों जगह पे जा रहा है, ये नेगेटिव चार्ज है सो उसको एनोड की ओर से अट्रैक्शन रहेगा. ये वाला पॉजिटिव पार्ट है, उनको कैथोड की ओर अट्रैक्शन रहेगा. ये दोनों में कंपटीशन हो जाएगा. कंपटीशन में ये जीत जाएगा, क्यों? उसका लूजिंग नेचर ज्यादा है. सो ये वाला जो एसीटेट था उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, वो लूज करेगा. तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन आ रहा है ऑन एनोड. व्हाट हैपेंस देयर? ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन में क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन लूजिंग रहता है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. यहाँ पे एक अपना है, एक गेन किया सोडियम की ओर से, सो ये गेन किया था वो रिलीज कर देगा और अपना वाला रह जाएगा. सो ये एसीटेट आयन था, वो एसीटेट फ्री रेडिकल हो जाएगा. ओके, और ये फ्री रेडिकल भी स्टेबल नहीं रहता. सो वो क्या करेगा? यहाँ से वंस अगेन होमोलाइटिक फिशन हो जाएगा. सो दो मिथाइल फ्री रेडिकल होगा, ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से एक है, यहाँ से यहाँ पे एक रिमेनिंग, ये दिस इज अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये वाला. सो अनपेड कंबाइन हो जाएगा और CO2 फॉर्म हो जाएगा. सो 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 रहेगा. 1 मॉलिक्यूल 1 CO2 1 CH3 देगा. यहाँ पे 2 लिया हुआ है, सो 2 CH3 होगा एंड 2 टाइम्स CO2. ये 2 CH3 कंबाइन होके इथेन देगा. ओके, ऑन कार्बन डाइऑक्साइड देगा. नाउ अंडरस्टूड. यहाँ पे क्या होने वाला है? Na+ वाटर के साथ कंपटीशन होने वाला है. यस, ये कंपटीशन में जीतने वाला वाटर है, क्योंकि इन थर्ड स्टेप ऑन कैथोड क्या होता है? गेनिंग नेचर इलेक्ट्रॉन का वाटर का ज्यादा है, मीन्स इनको हम रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं. वाटर का Na+ के कंपैरिजन में ज्यादा रहता है. सो Na+ रिडक्शन नहीं होगा बट वाटर वाला होगा. सो 2 molecule of water gains 2 electron and gives H2 gas and 2H-. We discussed earlier, water में
से 1H प्लस 1OH आएगा, तो 2 मॉलिक्यूल 2H प्लस 2OH आएगा, यहाँ पे 2OH माइनस आ रहा है, 1H प्लस आयन गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, सो 2H प्लस आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद H2 मॉलिक्यूल फॉर्म होगा. So here is H2 gas and OH minus it will be releases Na plus combines with OH in the solution, it gives sodium hydroxide. One question is asked in our book, by Kolbe's method we can form methane. No. When we take sodium formate, so it convert into formate ion and Na plus, यहाँ से CO2 रिमूव हो जाएगा, so कोई कार्बन ही नहीं रहेगा. So by Kolbe's method we can't get methane, but we can derive even number having alkanes like ethane, butane, then after hexane, okay, then after octane, like this, even numbers, not odd number. And methane we can't get by using Kolbe's method. Our preparation of alkane is over here. Bye.